Hi, hello, myself Saurav Patil and I welcome you all to our quick and comprehensive revision series. Today we are going to quickly revise political theory or we can say philosophical concepts. So हम जो ये revision करने वाले हैं, we are going to look net ZARP set perspective and CUET PG or we can say PhD entrances also, right? So within this perspective, with the MCQ approach, we are going to quickly revise the stuff. Let's start it. So we are going to divide this session in two parts. Today in part A and in another video part B. So in part A we are going to cover first thing is what is political theory and why do we need it. Because if you want to make better sense of what is liberty, what is equality, what is justice and whatever, we first need to understand what is political theory and what is the significance of political theory, what are the functions of political theory, right? So first chapter is very important. Then what is meant by liberty and liberty as a theory, then equality, justice, and last thing is power, authority and legitimacy, that we are going to discuss in this video part A. We will release another one video part B. In part B we are going to discuss rights and human rights, democracy, citizenship, state, sovereignty, civil society and gender. So this will be released later, right? So our references, like from where I'm citing this all notes or work cited, or you can say bibliography, or we can say references. So for this lecture, I'm going to refer. First thing is political theory. Raju Bhargav and Ashok Achar, they both edited this book. You all know that. Then an introduction to political theory by O.P. Gauba. Then the political theory and introduction by Andrew Hewood. Then the political ideologies by Andrew Hewood. So with these four books, I'm also going to refer नेट मतलब यूजीसी और नेट ज़ैरप के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, राइट? सो फ्रॉम टीम प्रभात आई एम गोइंग टू एनालाइज ऑल दिस क्वेश्चंस. सो व्हेन वी आर गोइंग टू लुक लिबर्टी, we are going to also see what they have asked on liberty, right? So before, so in that manner we are going to see this video. So first thing is, this video is complementary to what we have discussed in western political thought, or what we have discussed in some key concepts in comparative politics, right? So this video is complementary, right? So let's start. First session is what is political theory and why do we need it, right? So first feature is almost you all know that the obsessive and self-conscious concerns with the eternal structure of concepts, right, that we have, and with how concepts relates to the one another, and they both all come in the cluster, right? And how they in turn they mark their own boundaries. So political theory is about this, like whichever concept you take, they all concepts are related to each another, right? So when we are going to discuss justice, so we know that within justice we mostly complement the equality and liberty, and when we take them both together we form the conception of justice. So these all theories have their own, set of clusters, they came together and they also have their own boundaries. Then theory is a rational enterprise, like कुछ भी दिमाग में आ गया लिख दिया, इसको theory नहीं कहा जा सकता, right? So it's like empirical, rational, objective sense उसमें होता है, right? So theory is a rational enterprise where the term rational is understood very broadly to mean that the conclusion arrived or hinted at has some discernible structure of reasons behind it. मतलब जब आप rational enterprise कहते हो तो theory is like, you know aspiration to truth or objectivity, we can say, right? Then the fourth feature is, it's like a philosophy theory, like these concepts are the committed to unearthing the background assumptions and pre-assumptions of our statements, beliefs, actions and practices, right? Then the theory aspires to some degree a generality or abstraction, like, so we try to make generalizations about phenomenon, right? So theory aspires for that generalization, right, because it aims to cover a wide variety of related but disparate, a phenomena. Then finally a sixth feature is one that is product of a modern condition and has emerged more particularly with the birth of the modern science, has to be mentioned. So modern theories cannot be purely speculative, right? And they must pass through and then transcend the empirical world. So these were six features. So when we are going to
sum up these 6 features, then we can say that the conceptual sensitivity, rational structure, aspiration for the humanly achievable truth and objectivity, generality or generality, and explicit mandate to honor the assumptions and presuppositions, and last is the strong non-speculative intent, right? That the need not to bypass results of the micro inquiries into the particular. So anything from a plan to a piece of abstract knowledge can be described as a theory, but in academic discourse, however, a theory is an exploratory proposition, an idea or set of ideas that in some way seeks to impose order of meaning on a phenomenon, right? That हमने अब देख लिया कि what is theory. So we say the political theory, right? So for that purpose we need to understand what is a political. So political has a multiple meanings, right? So first is the collective power to take decisions about every aspect of good life in a community. Notice that political here refers to both power also and ethical values also, right? Then the power of some groups to control or subordinate others in order to realize not the good of the entire community but their own narrow interest, and in short to get others to do things that might go against their own interest. Here the term political is used to relate power and self interest, मतलब एक narrow interestly defined किया है. It also refers to power embodied in a separate institutional apparatus, the state, or therefore we can say that the state power used to realize the common goods. मतलब एक concept होता है ना कि common goods, common values के लिए state power use करना, और state power used to exercise domination by one group to the other. So these all comes under the political. Then this is one table, right? This is a broad map. When we discussed the Western political thought, we discussed in this sequence, right? So when we try to understand or try to make sense chronologically development about the political theory, so these all thinkers contributed, right? So classical or ancient Greek thought or ancient, traditional Greek thought जिसको हम कहते हैं, like Thucydides, Plato, Aristotle, Cicero, and they invented main concepts like ideal society, justice, city state, citizenship. मतलब Aristotle का जो भी कहना है citizenship के ऊपर हमने देखा है Western political thought की वीडियो में. Then the medieval, Augustine or Thomas Aquinas, etc. So these were the major conceptions, right? Just war, natural law, republic, or Christian politics, etc. Then the early modern period, right? So Niccolo Machiavelli, Thomas Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau. So in that period we got the sovereignty, the state, the natural right, political obligation, republicanism, constitutionalism. Then the modern period, we can say the Edmund Burke, Karl Marx, J.S. Mill, right? James Madison, Frederick Nietzsche. So we got the liberty, equality, nationalism, capitalism, socialism, or democracy, we can say, right? And then the contemporary, since 1970, we have the John Rawls, Robert Nozick, Michael Foucault, Jagan Habermas, or various other thinkers like, Edward Said, or we have various other post-colonialist thinkers, critical theorist thinkers, etc. Right? So we have the major ideas like free market, gender, culture, identity, diversity, or global justice, we can say. This was the development of Western political thought per se. So why do we need political theory? Political theory के functions क्या होते हैं हमें देखना है, right? So first is conceptual understanding of the human world. Political theory हमें help करती है कि हम conceptually human world को understand करें, right? Then the providing insights into general pattern of human practices and social change. Then critical reasoning of normative concepts embedded in the social practices. Then general reflections on the human conditions and on who we are. इसके ऊपर भी जनरल रिफ्लेक्शंस हमें पॉलिटिकल थ्योरी से मिलते हैं. एंड जनरल रिफ्लेक्शंस ऑन एक्सरसाइज ऑफ पावर इन सोसाइटी, मतलब पावर कैसे एक्सरसाइज कौन कर रहा है, इसके हिसाब से भी हम एक रिफ्लेक्शंस देखते हैं, ठीक है. एंड लास्ट इज इथिकल रोल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, मतलब स्टडी ऑफ हाउ पावर शुड बी विल्डेड बाय हुम एंड व्हाई. ये सबसे ज्यादा मैटर करता है. लेट्स सी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ लिबर्टी नाउ, राइट. So initially we discussed about what is political theory and why do we need it, because that was basic understanding about political theory, right? So हमें अगर समझना है कि लिबर्टी क्या है, इक्वालिटी क्या है, जस्टिस क्या है, तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल थियरी एक्चुअली होती क्या है, उसके यूजेस फंक्शंस क्या होते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, हमें उसकी जरूरत क्या है. दैट वाज बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट वी नीडेड, राइट. सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट to look actual theories or concepts, you can say. So first is liberty. So within liberty,
L.T. Hobbes, in his Elements of Social Justice, he said he pointed out that the uncharted freedom of one would be the conditional servitude of all, but one, and conversely a freedom to be enjoyed by all must impose some restraints upon all. So within our article 19, right, we have freedom, right, and there are various other AE, all other 5 to 6 types of freedom that we have. There we have some sort of restraints, we can say reasonable restraints, and that is needed. So ये quote याद रखिए, एल टी हॉबस का पूछ सकते हैं. Then the Ernest Barker, in Principles of Social and Political Theory, had sought to apply this principle in the wider socio-economic context. So the need of liberty for each is necessarily qualified and conditioned by the need of liberty of all. ये उसका statement है. They can ask this statement also. Then according to Hobbes, liberty or freedom signifies the absence of all impediments to the action that are not contained in the nature and intrinsic quality of an agent. So इसका जो Hobbes का जो freedom था ना, वो from fear and necessity से आता था, right? And इससे अलग व्यू हमें लॉक का मिलता है. लॉक का जो आता है ना कि लिबर्टी एज अ चॉइस आता है, और हॉब्स का जो है ना वो लिबर्टी एज अ फियर, फ्रॉम फियर एंड नेसेसिटी आता है. सो एज अ नेचुरल राइट लिबर्टी प्रीसीड्स सिविल एंड पॉलिटिकल सोसाइटी इन लॉक्स थॉट. सो जो लॉक का जो है ना कि सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी के पहले लिबर्टी आता है, याद रखिए, इस सीक्वेंस को भी याद रखिए. Then in John Locke's theory of natural rights, he claimed that some rights are provided to every individual by nature itself. Hence, it is duty of the state or government to protect those rights at every cost. So those natural rights are right to life, right to liberty, and right to property, or you can say right to estate. So they may ask you these three rights everywhere, right? In University of Hyderabad entrance exam, we have this question. In JNU also, in NET JARAB questions also. This is important, right? Life, liberty, and property. So these three were the basic rights that in Locke gives to the human beings, right? 2015 के दिसंबर में एक क्वेश्चन पूछा गया था. Then Rousseau considered freedom as the collective venture. उसका जनरल विल का थियरी हमें पता है कि to sum up all real wills, जो अपोजिट है एक्चुअल विल के. So Rousseau considered freedom as a collective venture and as a freeing oneself from the selfish motive towards a larger good of the entire group. So his conception of liberty, liberates human beings from the hierarchical and unjust inequality of society. And Rousseau views this inequality as the constraint in the realization of liberty. Unlike Hobbes and Locke, liberty is not a natural right for Rousseau, right? जैसे कि हॉब्स एंड लॉक के लिए लिबर्टी एज ए नेचुरल राइट था, रूसो के लिए नहीं है. लिबर्टी फॉर हिम इज अ लिबरेशन फ्रॉम अ स्टेट ऑफ अनफ्रीडम विच कम्स इनटू बीइंग विद द इमर्जेंस ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल सोसाइटी. आपको सबको पता है कि सिविलाइजेशन को रूसो क्रिटिसाइज करता है, राइट? एंड लिबर्टी फॉर बेंथम इज व्यूड थ्रू द यूटिलिटेरियन मैक्सिम. क्या है उसका? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर. यही लिबर्टी है बेंथम के लिए. देन लेट्स सी जेएस मिल ऑन लिबर्टी, राइट? वी नो हिज फेमस बुक. So, in his introductory section of his great work on liberty, J.S. Mill states clearly the limits to state power over the liberty of individual. In this book, there was a famous quote. उसका एक famous quote है ना, over himself, over his own body and mind, the individual is a sovereign, right? 2012 के जून साइकिल में एक क्वेश्चन पूछा गया था. J.S. Mill in his book on liberty introduced the concept of harm principle. harm principle भी उसने इंट्रोड्यूस किया है. मतलब अगर कोई एक्शन हमारा दूसरों को हार्म पहुंचाता है तो ही स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए, अदरवाइज स्टेट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, राइट? सो ही सेज दैट द ओनली पर्पस फॉर विच पावर कैन बी राइटफुली एक्सरसाइज्ड ओवर एनी मेंबर ऑफ अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी अगेंस्ट हिज विल इज टू प्रिवेंट हार्म टू द अदर्स. 2017 के जनवरी साइकिल में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन 2012 के जून साइकिल में ऊपर वाला, ठीक है? So, J.S. Mill in his famous work on liberty expressed his view regarding will, right? So, इसका will क्या है? According to him, will is not only dependent on number, it has a qualitative foundation, and the will which makes the institution takes on the form of a belief, and will is the basis of all institutions including the state. ये statement था 2018 के जुलाई साइकिल में पूछा गया था. According to J.S. Mill, placing restrictions on freedom of expression of human being is like robbing of the present and the future races. मतलब इसलिए बोलते हैं ना कि 99 people, अगर suppose 100 people are there, right, and 99 people are saying one thing and one people is saying another thing, let him say that, right? So
ये जो फेमस स्टेटमेंट है, प्लेसिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज लाइक रॉबिंग ऑफ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर रेसेस, ये उसका जो फेमस कोट था ऑन लिबर्टी में से 2019 के जून साइकिल में पूछा गया था. So after J.S. Mill, although he gave more importance to negative liberty, but he only propagated the positive liberty, right? As a positive liberty concern. That's why we say bridge between classic liberals and positive liberals. J.S. Mill को हम कहते हैं. So after J.S. Mill, T.H. Green, L.T. Hobhouse, Lasky further developed the positive conception of liberty, right? So let's say, let's go further. So liberty, is a liberty, not equality or fairness or justice or human happiness or a quite a conscience, right? ये इज़ाई बर्लिन का स्टेटमेंट, हमें पता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं और नेगेटिव लिबर्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट? सो मॉन्टेस्क्यूज थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एम्फेसिस प्राइमरली ऑन, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था. सो जो उनका बुक था द स्पिरिट ऑफ लॉज 1748 में मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था, विच स्टेट्स दैट देयर कैन बी नो लिबर्टी वेयर द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स आर यूनाइटेड इन द सेम पर्सन और बॉडी ऑफ मैजिस्ट्रेट्स और इफ द पावर ऑफ जजिंग बी नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स. इसलिए जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है ना, वो लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ये याद रखिए. नॉट लाइक अकाउंटेबिलिटी एक्सेट्रा, दीज आर द इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, बट सबसे बेसिक एम है सेपरेशन ऑफ पावर. क्यों है? क्योंकि लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना है. देन लेट्स लुक इज़ाई बर्लिन. सो there are some other libertarians, right? So with Berlin, like Hayek or Friedman, Milton Friedman or Robert Nozick. Just remember these names. These are the libertarians. So let's see. एक क्वेश्चन पूछा गया था 2012 के दिसंबर साइकिल में. Who said negative liberty is superior to positive liberty? इसका आंसर है इज़ाई बर्लिन. In his two concepts of liberty, he had written that I am normally said to be free to the degree to which no human being interferes with my activity. Political liberty in this sense is simply the area within which a man can do what he wants. This represents the negative manifestation of the concept of liberty by Berlin. 2012 के दिसंबर साइकिल में क्वेश्चन आया था. फिर से क्वेश्चन आया था टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, ये जो उसका बुक है ना, हमें उसमें उसका एक ऐसे भी है कि 4 essays ऑन लिबर्टी. 1969 में उसने ऐसे लिखा था. 2016 के जुलाई साइकिल में क्वेश्चन पूछा गया था. एंड ऐसे किसने, मतलब मैच द फॉलोइंग में नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, और अदर साइड में हमें था बर्लिन. ये 2017 के नवंबर में क्वेश्चन पूछा गया था. सो दे आर गोइंग टू आस्क अगेन एंड अगेन दिस थिंग्स, सेम थिंग्स ओनली. दे आर गोइंग टू ट्विस्ट इट एंड दे आर गोइंग टू आस्क इट, राइट? सो फॉर बर्लिन 1969 में जो उन्होंने बुक लिखा टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी एज अ फ्रीडम इज द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट. नेगेटिव लिबर्टी क्या है? अपॉर्चुनिटी टू एक्ट, नॉट एक्शन इटसेल्फ. As opportunity concept of freedom, it focuses on availability rather than exercise of opportunity. So अगर आपको opportunity exercise करनी है और उसमें कुछ constraints आ रहे हैं, तो state intervene करेगा और constraint निकालेगा, उसको हम positive liberty कहते हैं. और just opportunity है, action की बात नहीं कर रहे हैं, तो वो है negative liberty, right? Freedom from restraints और freedom from constraints. और अगर एक्चुअल इन रियलिटी आपको अगर आपका राइट एक्सरसाइज करना है तो पॉजिटिवली बात करनी पड़ेगी, पॉजिटिव लिबर्टी की बात करनी पड़ेगी. ठीक है? सो लेट्स गो फर्दर. वी नो दैट द फ्रेडरिक हाइक, राइट, उनका बुक था द रोड टू द सबडम. सो इन दिस बुक हाइक quoted state intervention and collectivism even in moderate forms inevitably leads to the erosion of liberty. क्योंकि हमें पता है ये लिबर्टेरियन है, तो स्टेट इंटरवेंशन को बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करेंगे. सो ही इज द सपोर्टर ऑफ लेजिस्फेयर एंड अपोनेंट ऑफ द केनिशियन इकोनॉमिक्स एंड द वेलफेयर स्टेट. 2015 के जून साइकिल में हमें एक क्वेश्चन मिलता है. हाइक, उनका एक और बुक था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 में उन्होंने लिखा था. He states that it's better that some should be free than none and better that many should have full freedom than that of all should have a limited freedom. ये उनका एक कोट है, पूछ सकते हैं. ठीक है? सो अनदर वन लिबर्टेरियन थिंकर इज मिल्टन फ्रीडमैन. इन हिज कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम इन 1962 जो उन्होंने लिखा था, sought to identify capitalism or a competitive market society as a necessary condition for freedom, which implies a repudiation of equality for the sake of maintaining freedom. Equality की जरूरत नहीं है, ऐसे वो बोलते हैं फ्रीडमैन. देन द नॉजिक का एक बुक है. मतलब हमने हाइक देखा, फ्रीडमैन देखा, राइट?
पहले बर्लिन देखा, अब हम देख रहे हैं नॉजिक। नॉजिक का बुक कौन सा है, फेमस बुक है, 1974 में उन्होंने लिखा था एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, राइट। सो ही एज्यूम्स दैट ऑल इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ एंड पावर आर द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में से मतलब कैसे क्या होगा कि आपके टैलेंट्स अलग होते हैं, आप एफर्ट्स अलग करते हो, एंड दैट इट वुड नॉट बी जस्ट टू रिमूव और रिड्यूस दिस इनइक्वालिटीज बाय रिडिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफर्स। सो एक डेजर्ट बेस्ड सिस्टम होना चाहिए, एक मेरिट बेस्ड, मेरिटोक्रेसी की जो हम बात करते हैं उसके उनके ऊपर बेस्ड सिस्टम होना चाहिए, ऐसे वो बोलते हैं, ठीक है। देन ये हमने नेगेटिव लिबर्टी थोड़ा बहुत देख लिया, राइट। सो लेट्स सी बर्लिन अगेन, व्हाट बर्लिन सेज। He states that the positive sense of world liberty derives from the wish on the part of the individual to be his own master. मतलब positive liberty क्या है? I wish to be the instrument of my own, not of other men acts of will. I wish above all to be conscious of myself as a thinking, willing, active being, bearing responsibilities for his choices and able to explain them by reference to his own ideas and purposes. It does not just refer to non-interference but includes the idea of self-mastery where the higher self is a command of the lower self. Positive liberty is the freedom to do, right? It is what can be called the exercise concept of freedom. It is the exercising and availing of the opportunities while negative freedom is just having the opportunities. मतलब कैसे कहा जा सकता है कि we have article 39, right, in DPSPs, where it says that state needs to minimize concentration of the property or wealth, right, और equal legal aid etc things है article 39 में। लेकिन हमें ये पता है कि you have right to stand for the election, right, and you can be candidate, but still you don't have enough resources, right, to win. So यहाँ availability है, लेकिन you can't exercise that your right substantially, right. So यहाँ क्या होना चाहिए कि स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए और एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना चाहिए, राइट। वी हैव द अफर्मेटिव एक्शन दैट कैन बी कॉल्ड एज द पॉजिटिव लिबर्टी, एंड जस्ट रूल्स होना एक्सेट्रा प्रोसीजरली थिंग्स होने दैट कैन बी कॉल्ड एज ए नेगेटिव लिबर्टी और प्रोसीजरल जस्टिस। वी कैन से वी आर गोइंग टू लुक दैट इन प्रोसीजरल इक्वालिटी, substantial equality, procedural justice, so substantial justice or procedural, you know, a negative type of liberty and the positive liberty. These are all having same complementary thoughts, right? So let's go further. So sorry, green का जो conception of freedom है negative नहीं है. He says freedom does not consist in the absence of restraints or compulsions. Green's theory of liberty, secondly, is a positive thing. T.H. Green. It is a positive power of doing or enjoying something worth doing or enjoying. So individuals will enjoy freedom in cooperation with other fellow citizens. These views are against the classical liberal notion of liberty. 2016 के जुलाई साइकिल में क्वेश्चन आया था. सो हमें चार्ल्स टेलर भी पता है, एक कम्युनिटेरियन थिंकर है, पॉजिटिव लिबर्टी की बात करेगा. सो ही पॉइंट्स आउट व्हाई नेगेटिव लिबर्टी मे बी नेसेसरीली प्रीरिक्विजिट बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर फ्रीडम. टेलर डिस्कसेस द टू टाइप्स ऑफ लिबर्टी एज द अपॉर्चुनिटी कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम, जिसको हम नेगेटिव लिबर्टी कह रहे हैं, एंड एज द एक्सरसाइज कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम, जिसको हम पॉजिटिव लिबर्टी कहते हैं. सो ये दो कंसेप्ट टेलर लेके आया. For Taylor, the concept of freedom is inclusive of the concept of self-realization. Self-realization को ज़्यादा importance देता है. Then Marx. So for Marx, what defines human nature is the ability to express creativity. Alienation भी मार्क्स का जो कंसेप्ट है, हमें पता है कि कैसे हम एलिनेट होते जाते हैं और जो क्रिएटिविटी रहती है ना, वो क्रिएटिविटी नहीं बचती. सो फ्रीडम इज टू एक्सरसाइज दैट क्रिएटिविटी. एक ह्यूमन नेचर इज अ क्रिएटिव बीइंग, ऐसे कार्ल मार्क्स कहते हैं ना, क्योंकि जो हम खाते हैं, सोते हैं, ये सब तो एनिमल्स भी करते हैं, अदर एनिमल्स भी, राइट. सो एक अलग ऐसी क्या इंस्टिंक्ट ह्यूमन नेचर में, इसेंस क्या है, हमारा इसेंस जो है वो है प्रोडक्ट, मतलब काम करना और क्रिएटिविटी, राइट. सो circumstances that create situations of inability of expression of self are those that deny the liberty. Marx explains the denial of liberty, what he terms alienation, as a 4-stage process. मतलब हमें पता है कि alienation का concept क्या है. Let's revise it again. The agent is alienated from the product.
from productive activity, from one's own human nature, and from other human beings. Marx explains this by saying, as a result, therefore, man, the worker, no longer feels himself to be freely active in any but his animal functions, eating, drinking, procreating, or at most in dwelling. And in his human functions, he no longer feels himself to be anything but an animal. राइट ये डिस्टिंक्शन उनका है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कार्ल मार्क्स का, ठीक है. सो लेट्स सी अगेन. सो हाउ अबाउट मर्क्यूज वी आर गोइंग टू सी. सो मर्क्यूज जो 1898 से 1979 के बीच में हमारे बीच में थे, इन हिज वन डायमेंशनल मैन, ये जो उनका बुक है वन डायमेंशनल मैन, ये क्या है, स्टडीज इन द आइडियोलॉजी ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी, 1964 में उन्होंने लिखा था. Marcuse dwelled on the theme of alienation in contemporary Western society. He gave a penetrating critique of capitalism as regards its impacts on human freedom. According to him, capitalism exercises monopolistic control not only on production and distribution, it also creates the desire and demand for commodities through clever manipulation of the mass media. Right? So mass media को manipulate करके कैसे वो exercise करता है अपना power, capitalism. So उनका और एक बुक था एरोज एंड सिविलाइजेशन, 1966 में उन्होंने लिखा था. हियर ही हैज गिवन अ ब्लूप्रिंट ऑफ सोसाइटी वेयर एलिनेशन विल बी रिमूव्ड एंड फ्रीडम विल बी रिस्टोर्ड. अगर फ्रीडम को रिस्टोर करना है तो एलिनेशन को हटाना होगा. इट विल बी अ डेमोक्रेटिक कम्युनिटी वेयर वर्क विल बी बिकम प्ले एंड नेसेसरी लेबर विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन हार्मनी विथ लिबरेटेड एंड ऑथेंटिक इंडिविजुअल नीड्स. राइट. सो लेट्स सी सीबी मैकपर्सन. जो सीबी मैकपर्सन है, ये जो ए है मैकपर्सन, राइट, उनका कंसेप्ट है क्रिएटिव फ्रीडम. सो क्रिएटिव फ्रीडम किसका कंसेप्शन है, मैकपर्सन का, याद रखिए, पूछा जा सकता है. सो इसेंस ऑफ फ्रीडम लाइज इन फुली रियलाइजिंग हिज क्रिएटिव फैकल्टीज. इसेंस ऑफ फ्रीडम क्या है, अपनी क्रिएटिव फैकल्टीज को रियलाइज करना, एक सेल्फ रियलाइजेशन. रियल फ्रीडम कैन बी एक्सरसाइज्ड थ्रू डेवलपमेंटल पावर. मतलब हमें पता है ना कि ये दो तरीके की पावर की बात करते हैं, हम पावर में भी ये देखेंगे, एक एक्सट्रैक्टिव पावर होता है और एक डेवलपमेंटल पावर होता है. देखें, सो एज इट डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्टिव पावर, developmental power requires proper development of one's own human potentialities and their application to one's self appointed goals, while extractive power involves making use of others potentialities for serving one's own ends. right. so ये दो टाइप्स के पावर याद रखिए सीबी मैकपर्सन के हैं, और वो क्रिएटिव फैकल्टीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कि क्रिएटिव सेंस. देन जेड मैकुलम का 1967 में उन्होंने बुक लिखा था फ्रीडम एज अ ट्रायडिक रिलेशन. सो फ्रीडम एज अ ट्रायडिक रिलेशन एक किसका कंसेप्शन है, पूछ सकते हैं, याद रखिए. देन रोनाल्ड डॉर्किंग का टेकिंग राइट्स सीरियसली, 1977 में उन्होंने लिखा था टेकिंग राइट्स सीरियसली. रोनाल्ड डॉर्किंग को हम आगे भी देखने वाले हैं. राइट. सो दीज आर द वेरियस पर्सपेक्टिव्स ऑन फ्रीडम. यू कैन हैव जस्ट स्क्रीनशॉट कि फ्रीडम को लिबरल्स कैसे देखते हैं. लिबरल्स के लिए तो सुप्रीम वर्च्यू है. राइट. कंजर्वेटिव लोग कैसे देखते हो, तो फ्रीडम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि फ्रीडम हो सोसाइटी में. राइट. सोशलिस्ट लोग कैसे देखते हैं फ्रीडम को, फ्रीडम इन पॉजिटिव टर्म देखेंगे मोस्टली. राइट. एक एज अ सेल्फ फुलफिलमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन. एनार्किस्ट लोग फ्रीडम को क्या देखेंगे, एज एब्सोल्यूट वैल्यू. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस फ्रीडम को कौन देंगे, तो एनार्किस्ट लोग देंगे. राइट. देन द फैसिस्ट, ये तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि फ्रीडम हो, फ्रीडम एज अ लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी एज अ नॉनसेंस. सो ग्रीन्स वो कैसे देखेंगे, कि इकोलॉजिस्ट भी है ना फ्रीडम का. एंड द फंडामेंटलिस्ट लोग फ्रीडम को कैसे देखेंगे. दीज आर वेरियस पर्सपेक्टिव्स. यू कैन हैव जस्ट स्क्रीनशॉट. लेट्स वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट द इक्वालिटी. राइट. So firstly we know that in writings of Aristotle we got some sort of meaning about equality, his thoughts on equality. Right. So Aristotle's conception of equality is evident was limited to the class of citizens only. वो पता है कि एक उसका exclusive citizenship का concept है कि वो वुमेन्स को सिटीजनशिप राइट नहीं देता है, चिल्ड्रंस को, ओल्ड एज पीपल्स को नहीं देता है, एलियंस को नहीं देता है, जो फॉरेनर्स है उनको नहीं देता है, या जो प्रिजन में है उनको भी नहीं देता है. सो उनका जो इक्वालिटी का कंसेप्ट था वो सिटीजन्स के लिए लिमिट था. द पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स ले इन द एक्नॉलेजिंग द वर्च्यू ऑफ रूलिंग एंड बीइंग रूल्ड इन टर्न. सो डिफेंस एंड नेचुरल इनइक्वालिटी को डिफेंड करता है एरिस्टोटल. वो स्लेवरी को भी जस्टिफाई करता है, हमें पता है. हॉब्स डिफेंड्स अ व्यू ऑफ द नेचुरल इक्वालिटी बिटवीन ऑल ह्यूमंस इन द स्टेट ऑफ नेचर में हॉब्स इक्वालिटी को डिफेंड करता है. देन रूसो, हमें पता है उसका एक फेमस बुक है डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ इनइक्वालिटी, आल्सो कॉल्ड द सेकंड डिस्कोर्स, इसको जो हम बोलते हैं. राइट. सो रूसो जो है ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के दिसंबर में, हु हैड डिफरेंशिएटेड बिटवीन नेचुरल एंड कन्वेंशनल इनइक्वालिटी. तो उसका आंसर है रूसो.
इन हिज वर्क डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी, ये जो बुक है डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ इनइक्वालिटी, comprehensively discussed the differences among conventional inequality and natural inequality. The natural inequality stems from the differences in age, health or other physical characteristics. The moral inequality is established by the convention of men. याद रखिए. Then let's see Karl Marx. In his German ideology, he stated that the how ruling class produces a legitimizing ideology to perpetuate the system of economic exploitation. Towards the end, the division of labor in the ruling class of a capitalist society will ensure a division between mental and mental labor, and correspondingly the division between the thinkers of the class and capital owners will emerge. मतलब कैसे दो क्लास इमर्ज होंगे और पहला जो क्लास है जो हैव्स क्लास है वो कैसे एक आइडियोलॉजी इन्वेंट करके एक्सप्लॉइटेशन करेगा और परपेचुएट रखेगा वो डोमिनेशन अपना. ठीक है, जर्मन आइडियोलॉजी में हमें ये मिलता है. सो व्हाट मार्क्स इनविजन्स as a final stage of history, a communist, a classless, stateless society, withering away of state, एक फाइनल उसका कंसेप्शन है, राइट. क्योंकि अगर क्लासेस ही नहीं रहेंगे तो स्टेट का कोई काम ही नहीं है. क्लास स्टेट का काम क्या करता है? स्टेट एक क्लास के इंटरेस्ट को प्रोपोगेट करता है और डोमिनेंट बना के रखता है, राइट. So it becomes clear only when we understand the impossibility of human emancipation under the conditions of exploitative social relations. The question of human emancipation is linked to the freedom from economic inequalities. सो उसका एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल भी है, राइट. सो पहले उसका जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल था वो था टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, राइट. और बाद में उसने ये रिवाइज किया. उसका एक बुक था क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, उसमें मार्क्स ने ये रिवाइज किया और वो बोला फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स. जो एक डोमिनेंट व्यू था वो क्या था? फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, एक मेरिट किसका है, उसका सोसाइटी में इतना कॉन्ट्रीब्यूशन है तो उसको इतना मिलना चाहिए, एक व्यू था जिसको हम डेजर्ट बेस्ड, राइट बेस्ड व्यू कहते हैं. वो हटाना है हमें और उसको रिप्लेस करना है टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स. जो मार्क्स का एक बुक था वो बाद में पब्लिश हुआ उसके डेथ के बाद 1978 में, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ. तो हमें एक स्टेटमेंट मिलता है. सो लेट्स सी. टॉकवेल का हमें पता है, उसका एक फेमस बुक है डेमोक्रेसी इन अमेरिका जो उन्होंने 1969 में लिखा था. इक्वालिटी एज अ टेंडेंसी ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री. Aristocracy links everybody from peasant to king in one long chain. Democracy breaks the chain and free each link. So for Tocqueville ना, equality is a progressive idea कि सोसाइटी जैसे जैसे प्रोग्रेस होता जाएगा इक्वालिटी बढ़ती जाएगी. सोसाइटी एक मतलब एक it tends towards equality, ऐसा ऐसे टॉकविले कहता था. Then equality of resources, रिसोर्स इगलिटेरियनिज्म जो है उसमें कौन कौन है? जॉन रॉल्स है, रोनाल्ड डॉकिन है और एरिक रैकोवेस्की है. सो हम पहले देखते हैं डॉर्किन. ये डॉर्किन है, राइट, रोनाल्ड डॉर्किन. उसका एक बुक हमने पहले ही देखा है. सो डॉर्किन सजेस्ट टू टू स्टेज प्रोसेस. क्या है? द एम्बिशन सेंसिटिव ऑक्शन एंड द इंश्योरेंस स्कीम. सॉरी. सो ऑन इक्वालिटी, ये उनका एक बुक था, 2014 की जून साइकिल में पूछा गया था. सो द एम्बिशन सेंसिटिव ऑक्शन एंड द इंश्योरेंस स्कीम क्या है, हम पहले देखते हैं. कि एक राजू भार्गव उनका जो एडिटेड वॉल्यूम है ना पॉलिटिकल थियरी का, उनमें एक एग्जांपल दिया है कि एक आइलैंड है और वहां पे सपोज एक 100 लोग है, ठीक है. वी आर 100 पीपल्स देयर एंड वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द थिंग्स बिटवीन आवरसेल्व्स. तो द एम्बिशन सेंसिटिव एक्शन मतलब क्या है कि सबको एक इक्वली अगर जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कुछ लोग ऐसे होंगे ना कि जो फिजिकली डिसेबल्ड होंगे. अब सपोज कोई आंखों से रिलेटेड, मतलब एक आई से रिलेटेड कोई डिसेबिलिटीज है तो उनके लिए क्या चाहिए होगा? एक स्पेक्टेकल चाहिए होगा, राइट, चश्मा चाहिए होगा. तो उसके लिए उसको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा. अब हम सबको अगर 100 रुपए देंगे तो उसमें 100 में से हो सकता है कि उसके 20 रुपए चश्मा खरीदने के लिए चले जाए, तो 80 रुपीज ही उसके पास बचेंगे, ठीक है. तो एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा. तो एक इंश्योरेंस स्कीम मतलब जो डिसेबिलिटीज है वो हटाने के लिए एक सबको लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाना पड़ेगा, ठीक है. ये डॉर्किन बात करता है, एम्बिशन सेंसिटिव ऑक्शन एंड द इंश्योरेंस स्कीम. याद रखिए उसका बुक था ऑन इक्वालिटी, ये डॉर्किन है. देन द एडवर्ड बर्नस्टीन, उनका एक बुक था इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, पूछा जा सकता है, जो उन्होंने 1898 में लिखा था. देन आर.एच. टॉनी, ये उनका बुक था इक्वालिटी के ऊपर जो उन्होंने लिखा था, राइट. ये आर.एच. टॉनी है, ये उनका बुक था. सो वो हम जीवित थे 1880 से 1962. ब्रिटिश स्कॉलर थे, सोशल फिलोसोफर, हिस्टोरियन.
He championed a form of socialism firmly rooted in Christian social moralism, unconnected with the Marxist class analysis. So the disorders of capitalism, he argued, derived from the absence of moral ideals, leading to unchecked acquisitionness and widespread material inequality. The project of socialism is therefore built on a common culture, and that will provide the basis for the social cohesion and solidarity. So टॉनीज मेजर वर्क क्या कहते हैं उनके, द एक्विजिटिव सोसाइटी 1921 में उन्होंने लिखा था, इक्वेलिटी 1931 में, जो बाद में 1969 में ज्यादा अच्छे से आया, एंड द रेडिकल ट्रेडिशन 1964 में उन्होंने लिखा था। ये 3 बुक्स उनकी याद रखिए। देन द एंथनी क्रॉसलैंड, उनका एक बुक था द फ्यूचर ऑफ सोशलिज्म, जो 1956 में उन्होंने लिखा था, एंड द सोशलिज्म नाउ, जो 1974 में उन्होंने लिखा था। सो लेट्स सी नाउ माइकल वॉल्जर, उनका स्पीयर ऑफ जस्टिस ये बुक था, ये माइकल वॉल्जर है, उनका ये बुक है स्पीयर ऑफ जस्टिस। सो उसके पहले जस्ट हम जानते हैं, हमें पता है कि इक्वेलिटी ऑफ कैपेबिलिटीज, मतलब कैपेबिलिटी अप्रोच कौन लेके आता है, अमर्त्य सेन, राइट, उनका कैपेबिलिटी अप्रोच है। सो व्हाट इज कैपेबिलिटी? कैपेबिलिटी इज एबिलिटी टू अचीव अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ फंक्शंस। मतलब फंक्शन, कैपेबिलिटी को हम कैसे देख सकते हैं कि लिटरेसी एक जस्ट थिंग हो सकती है, लेकिन उसके बाद वो रीड कर पाना, उसको हम ये कहते हैं कि एक कैपेबिलिटी है हमारे बीच में, राइट। सो वी आर रीडिंग समथिंग। सो सेन आर्ग्यूज कैपेबिलिटी अप्रोच क्या है कि कैपेबिलिटी मतलब एक रियल फ्रीडम, एक्सपांशन ऑफ रियल फ्रीडम, राइट, दैट पीपल एंजॉय, सच एज बीइंग एबल टू रीड, बीइंग हेल्दी, हैविंग सेल्फ रिस्पेक्ट, बीइंग पॉलिटिकल एक्टिव, बीइंग एबल टू टेक पार्ट इन लाइफ्स ऑफ ओन कम्युनिटी एंड सो ऑन एक्सेट्रा। दीज आर सम सॉर्ट ऑफ कैपेबिलिटीज। 1992 में उन्होंने इनइक्वालिटी रीएग्जामिन्ड बुक लिखा था, जो 2016 के जुलाई साइकिल में ये बुक पूछा गया था, इनइक्वालिटी रीएग्जामिन्ड 1992 में उन्होंने लिखा था। और कैपेबिलिटी क्या है कि एबिलिटी टू अचीव सर्टेन सॉर्ट ऑफ फंक्शंस। ये फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं देखिए, एंड एक रियल फ्रीडम, कैपेबिलिटी मतलब एक रियल फ्रीडम, एक्सपांशन ऑफ रियल फ्रीडम। सो जो माइकल वॉल्जर है, उनका जो इक्वेलिटी है वो है कॉम्प्लेक्स इक्वेलिटी। कॉम्प्लेक्स इक्वेलिटी क्या है हम देखेंगे, उनका बुक है स्पीयर ऑफ जस्टिस, अ डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इक्वेलिटी, 2013 के जून साइकिल में क्वेश्चन आ गया था। सो लेट्स सी, ऑल डिस्ट्रीब्यूशंस आर जस्ट एंड अनजस्ट रिलेटेड टू द सोशल मीनिंग्स ऑफ गुड्स एट स्टेक। वॉल्जर ने 1983 में ये कोट उनका फेमस है। वो क्या कह रहे हैं देखो, ऑल डिस्ट्रीब्यूशंस आर जस्ट, और उनको अनजस्ट भी कह रहे हैं, रिलेटिव टू द सोशल मीनिंग्स ऑफ गुड्स एंड स्टेक। तो वो इसमें ये बोलते हैं कि हमें पता है कि जॉन रॉल्स एक डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसमें एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की बात करता है। वो उसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि हर एक सोसाइटी के अपने खुद के नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, और वो अपने वैल्यूज और नॉर्म्स किसी एक पर्टिकुलर गुड को अटैच करते हैं कि एक आधा गुड जो है, एक आधी थिंग है, एक आधी कोई भी चीज है, इस सोसाइटी में हो सकता है उसका बहुत ज्यादा वैल्यू, और जरूरी नहीं कि इस सोसाइटी में उसको लोग वैल्यू करते हो। तो अलग अलग थिंग्स जो होते हैं उसके वैल्यूज और नॉर्म्स के हिसाब से अलग अलग सोसाइटी में उसके अलग अलग वैल्यूज होते हैं। तो जब हम कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसको पर्टिकुलरली उस सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में ही देखना चाहिए, राइट। सो लेट्स सी, वॉल्जर आर्ग्यूज दैट पीपल कंसीव ऑफ एंड क्रिएट गुड्स which they then distribute among themselves. It is important that we shift our attention from distribution to the conception and creation of goods. We give meaning to the goods which determine their social value. The same good have different meanings in different societies. There is no single set of basic goods which could be universally conceived of and given in the same value, right? So complex equality is the opposite of tyranny. मतलब एक यूनिवर्सल सेट लेके आना और सबको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको टायरनी बोलते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी इज द अपोजिट ऑफ टायरनी। इट एस्टैब्लिशेस अ सेट ऑफ रिलेशनशिप्स सच दैट डोमिनेशन इज इम्पॉसिबल। इन फॉर्मल टर्म्स, complex equality means that no citizen standing in one sphere or with regard to one social good can be undercut by standing in some other sphere with regard to some other goods. मतलब जरूरी नहीं है कि किसका सोशल स्टेटस ये है तो वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए इकोनॉमिक स्टेटस में भी, इकोनॉमिक स्टेटस ये है इसके लिए उसको पॉलिटिक्स में भी इंपॉर्टेंस दो, जरूरी नहीं है। अलग अलग स्पीयर्स होते हैं और अपना अपना अलग अलग स्टैंडिंग होता है। लेकिन हमें पता है कि अपनी सोसाइटी में क्या होता है कि जो इकोनॉमिकली डोमिनेट करता है वो पॉलिटिकली भी डोमिनेट करता है,
right? So this is one sort of utopian we can say. लेट्स सी उनके और भी मतलब जो अरिस्टोनी है, हेरोलॉस्की है, सीबी मैकफर्सन है, सो दे ऑल सी लाइक लिबर्टी एंड इक्वालिटी एज अ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब दोनों भी एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है. और जो लिबर्टेरियन थिंकर्स है, दे डोंट सी एज अ कॉम्प्लीमेंट्री, दे विल से एंटागोनिस्टिक और कॉन्ट्रडिक्टरी टू ईच अदर, राइट? एलेक्स कैलनिकोस, उनका एक बुक है इक्वालिटी ऑफ व्हाट, 2017 के जनवरी साइकिल में बुक पूछा गया था. और डेविड मिलर का एक बुक है, याद रखिए, आर्गुमेंट्स फॉर इक्वालिटी, जो 1996 में उन्होंने लिखा था. उसमें उनमें वो सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं. सोशल इक्वालिटी की बात कौन करता है? तो अगर ऑप्शन हो तो जस्ट यू कैन नो अबाउट दैट. सो लेट्स सी, these are some perspectives on equality, right? So how liberals see equality? Liberals believe that people are born equal in the sense that they are the equally moral worth, they have the equal moral worth, and that implies that formal equality, मतलब निगेटिव इक्वालिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे लिबरल्स, राइट? बट उसमें पॉजिटिव लिबरल्स जो होंगे वो पॉजिटिव लिबरलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे. सो पॉजिटिव इक्वालिटी, सॉरी. कंजर्वेटिव्स है, ट्रेडिशनली व्यूड सोसाइटी एज ए नेचुरली हायरार्किकल, पैट्रियार्कल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सोशलिस्ट जो है वो इक्वालिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस सोशलिस्ट देंगे. एनार्किस्ट है, सो प्लेस अ पर्टिकुलर स्ट्रेस ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी. फैसिस्ट है, फेमिनिस्ट भी है. So you can just have a screenshot and how each stream see as a equality, right? So ecologists advanced notion of biocentric equality. So एक एंथ्रोपोसेंट्रिज्म है, उसको हटाना चाहते हैं. लाइक दैट इज रॉन्ग ऑल्सो. एंथ्रोपोसेंट्रिज्म रॉन्ग है कि बस ह्यूमन नेचर के लिए सुप्रीम रखना और बाकी के लोगों को अंडरमाइन करना, बाकी की सॉरी अदर थिंग्स को. फेमिनिस्ट लोग है वो पैट्रियार्की को हटाना चाहते हैं, राइट? दे टॉक इक्वालिटी अबाउट सेक्सुअल इक्वालिटी, इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, राइट? फैसिस्ट लोग है वो तो हमें पता है कि रेडिकल इनइक्वालिटी की बात करते हैं बिटवीन लीडर्स एंड मासेस, राइट? कि एनार्किस्ट है, ठीक है. दीज आर ऑल अदर स्ट्रीम्स. लेट्स सी जस्टिस. सो इन जस्टिस वी हैव जस्टिस एज अ वन पर्सन, वन ड्यूटी, वन क्लास एंड वन वर्क. ये स्टेटमेंट किसका है? जस्टिस एज अ वन पर्सन, वन ड्यूटी, वन क्लास एंड वन वर्क, प्लेटो का है, राइट? 2012 के दिसंबर साइकिल में और 2017 के नवंबर साइकिल में क्वेश्चन यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा गया था. ये स्टेटमेंट किसका है? प्लेटो का है. Then Republic is a Plato's best known work. The central question of this book is what is justice? या उसका एक सब टाइटल, सब बुक नाम भी था, क्या था? कंसर्निंग जस्टिस. सो रिपब्लिक ये है, क्या है प्लेटो का? व्हाट इज जस्टिस और कंसर्निंग जस्टिस. 2012 के दिसंबर साइकिल में क्वेश्चन पूछा गया था. जस्टिस एज अ प्रोपोर्शनल इक्वालिटी. जस्टिस को प्रोपोर्शनली कौन देखता है? एरिस्टोटल दिखता है. 2012 के दिसंबर साइकिल में क्वेश्चन पूछा गया था. डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज मेनली कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर्स एंड वेल्थ. ऐसे किसने कहा था? एरिस्टोटल ने. 2019 के दिसंबर साइकिल में क्वेश्चन पूछा गया था. जस्टिस एज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग. थ्रेसी मैचेस का स्टेटमेंट है, 2012 के दिसंबर में हमें मिलता है. हॉब्स इन हिज फेमस वर्क लिवायथन wrote that laws are the rules of just and unjust, nothing being reputed unjust that is not contrary to the some laws. ये उसका स्टेटमेंट पूछा गया था 2012 के दिसंबर साइकिल में. अर्नेस्ट बर्कर, हम देखते हैं कि उनका एक बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, 1951 में जो पब्लिश हुआ था, हैड शोन दैट जस्टिस रिप्रेजेंट्स अ सिंथेसिस बिटवीन प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी. ये स्टेटमेंट अगर पूछा गया कि हु सेज दैट जस्टिस एज अ सिंथेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी? अर्नेस्ट बर्कर. So let's see procedural justice. Sorry. Procedural or formal justice we can say refers to the manner in which decisions or outcomes are achieved as opposed to the content of the decision themselves. मतलब आउटकम क्या होगा उनको मैटर नहीं करता है, किसको क्या इन रियलिटी मिल रहा है उनको मैटर नहीं करता है. उनको बस इतना कहना होता है कि प्रोसीजर्स है ना, नहीं ठीक, प्रोसीजर्स जो रूल्स लॉज जो होंगे वो अगर सही है तो वो सोचेंगे कि सब सही है. सो दे विल स्ट्रेस ऑन फॉर्मल लॉज और प्रोसीजर from which we arrive at the decision. So procedural justice के एक्सपोनेंट कौन थे? मेजर हर्बर्ट स्पेंसर, फ्रेडरिक हायक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नॉजिक, जॉन रॉल्स. उनका जो थ्योरी है रॉल्स का, हमें पता है कि वो
एक पॉजिटिव लिबरलिज्म की तरह बात करते हैं, लेकिन वो भी एज अ प्रोसीजर, क्योंकि उनका एक 3 लेवल्स ऑफ प्रोसीजर की बात करते हैं ना, कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, फिर हार्म प्रिंसिपल आता है सॉरी। तो जॉन रॉल्स भी, अगर टिपिकली उनको डिवाइड करना होगा, क्लासिफाई करना होगा, तो वो प्रोसीजरल थिंकर्स ही आएंगे, याद रखिए उसको। आरजे बर्नस्टीन, उनका एक बुक था द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी, 2013 के जून में एक क्वेश्चन आया था। लेट्स सी जॉन रॉल्स। सो उनका जस्टिस एज अ फेयरनेस, वो देखते हैं ना कि एक फेयर प्रोसीजर होना चाहिए, जिसकी हम बात कर रहे थे। 2017 के जनवरी में और 2012 के दिसंबर में एक क्वेश्चन आया था, 2 बार आ गया है। So John Rawls' well-known book is Theory of Justice. He represents a very strong defense of the idea of justice based on the basic tenets of procedural theory. Justice requires a meticulous following of rules. Procedural thinker है, हमें पता है। So जो Rawls का जो theory है, उसको क्रिटिसाइज कौन करता है? नॉजिक क्रिटिसाइज करता है, और नॉजिक का एंटाइटलमेंट थ्योरी है, राइट, वेयर इक्वालिटी एज एन आइडिया ऑफ कॉन्स्पियस बाय इट्स एब्सेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जो रॉल्स है वो नीड फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी को इंपॉर्टेंस देता है, राइट, और उसका वेल ऑफ इग्नोरेंस हम बाद में देखेंगे अच्छे से। सो वेल ऑफ इग्नोरेंस इज द ओरिजिनल पोजीशन. Its purpose is to explore ideas about justice, morality, equality, and social status in a structured manner. The veil of ignorance, a component of social contract theory, allows us to test ideas of fairness. Behind the veil of ignorance, no one knows who they are. Parties not even knows about their spatial psychological propensities also. ये 2017 के जनवरी में ऐसे स्टेटमेंट्स दिए गए थे कि हम we don't know about anything like our race or our caste, religion, etc. etc. we can say. So ये उनका बुक है थियरी ऑफ जस्टिस, राइट, थियरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स का. So the Rawls theory of justice is mainly based upon two principles of justice. One is equality principles and other is difference principle. These two principles, although set a lot of procedures in place, it also develops the idea of social justice. Rawls is categorical that there is a need for rational justification of all departures from equality. Equality से अगर डिपार्ट होना है तो एक rational justification चाहिए. 2017 के नवंबर में हमें एक क्वेश्चन मिलता है. The term overlapping consensus किसका है? तो ये भी रॉल्स का है. Overlapping consensus मतलब क्या? He refers to how supporters of different comprehensive normative doctrines can agree on a particular principles of justice that underwrite a political community's basic social institutions. So comprehensive doctrine can include system of religion, political ideology or morality. Overlapping consensus is a term coined by John Rawls in a theory of justice and developed in political liberalism, जो उसने बाद में लिखा. 2012 के जून में हमें एक क्वेश्चन मिलता है. सो रॉल्स एंड कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, उसका डिफरेंट प्रिंसिपल हमने पता है, हमने रॉल्स को जब डिस्कस किया हमें पता है कि अगर लिस्ट एडवांटेज जो सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के, उनको अगर बेनिफिट हो रहा है तो वो इनइक्वालिटी को सपोर्ट करता है. 2012 के जून में हमें क्वेश्चन मिलता है. उन्होंने और एक बुक लिखा था, हमें उनका थ्योरी ऑफ जस्टिस तो पता होता है लेकिन ये बुक नहीं पता होता है, द लॉ ऑफ पीपल, जो उन्होंने 1999 में लिखा था. ही सॉट टू अप्लाई हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस टू अ लार्जर ग्लोबल जस्टिस की बात करते हैं, a world of peoples, thus explored how and how far the international realm could be reformed. ठीक है, ग्लोबल एरिना में बात के. लेट्स सी फर्दर. रॉल्स एक वेल ऑर्डर सोसाइटी की बात करता है, राइट. 2012 के दिसंबर साइकिल में क्वेश्चन आया था. आई एम नॉट गोइंग टू गो इन डेप्थ व्हाट ही सेज अबाउट वेल ऑर्डर सोसाइटी, यू कैन जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट कि he lays out the 7 conditions characterizing well ordered society and these are these conditions, right. These are the 7 conditions. You can just have a screenshot. So let's see some more things about Rawls. So Rawls published 3 major books. We know that: A Theory of Justice, very focused on distributive justice and attempted to reconcile the competing claims on the values of freedom and equality, etc. Second major book is Political Liberalism, where he addressed the question of how citizens divided by tactical, religious and philosophical disagreements could come to endorse a constitutional democratic regime. And third is the law of the peoples. The law of peoples, उसमें वो he focused on the issues of the global justice, एक global arena में बात करता है, right. 2013 के जून में तीनों बुक्स पूछे गए थे कि which 3 books written by Rawls, etc. Then John Rawls said that each person possesses an
inviolatably founded on justice that even in the welfare of society as a whole cannot override. For this reason, justice denies that the loss of freedom for some is made right by a greater good shared by the others. ये statement 2013 के दिसंबर में आया था. Then which one of the following social contract tradition has been revitalized by John Rawls in his book A Theory of Justice? तो जो उसका जो Theory of Justice बुक था उसमें उन्होंने लॉक, रूसो और कांट को एक सिंथेसाइज करके उनके थ्योरी को लिखा गया है. 2015 के जून में एक क्वेश्चन आया था. Then who among the following dismissed John Rawls' concept of social justice as a mirage? As a mirage कौन कहता है? फ्रेडरिक हायक. हमें पता है कि हमने पहले डिस्कस किया, वो उसको उनको क्रिटिसाइज करता है. So a theory of justice, Rawls explicitly states that society is a cooperative venture for mutual advantage. 2018 की जुलाई में एक क्वेश्चन आया था, ऊपर का 2016 की जुलाई में आया था. The idea of justice as a fairness is a Rawlsian theory flows from एक इंडिविजुअलिज्म से फ्लो कर दिया, राइट. जस्टिस एज अ फेयरनेस प्रोसीजरल थ्योरी की जो जब वो बात करता है, रॉल नेवर विश टू कॉम्प्रोमाइज विद द इंडिविजुअल लिबर्टी. याद रखिए उसको, ठीक है. 2019 के जून में एक क्वेश्चन आया था. हु हैड कंडेम्ड यूटिलिटेरियनिज्म? हमें पता है वो उसका एक स्टेटमेंट भी किया है कि इट्स बेटर सोक्रेटिस अनसेटिस्फाइड देन पिग सेटिस्फाइड, राइट. सो यूटिलिटेरियनिज्म को क्रिटिसाइज करता है, वो क्वालिटेटिव अप्रोच लेके आता है रादर देन जस्ट क्वांटिटेटिव. 2019 के दिसंबर में एक क्वेश्चन आया था. देन माइकल सैंडल रॉल्स के ऊपर एक यूपीएससी में आपको पता होगा कम्युनिटेरियन क्रिटिक ऑन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस है एक सेक्शन. तो एक उसमें एक मेजर थिंकर है माइकल सैंडल, वो रॉल्स की थ्योरी को क्रिटिसाइज करता है क्योंकि उसमें जो कुछ इंडिविजुअलिज्म को लेके या कुछ प्रोसीजरल नोशंस है उसको क्रिटिसाइज करता है. लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस ये उनका बुक है माइकल सैंडल का. 2013 के जून में एक क्वेश्चन आया था. हम बाद में देखेंगे सैंडल के बारे में. सो यह है नॉजिक. उनका एक एंटरटेनमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस है नॉजिक का, 2014 के जून साइकिल में पूछा गया था. देन जो उनका जो एंटरटेनमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ एंटरटेनमेंट से कुछ 3 प्रिंसिपल्स की बात करते हैं. फर्स्ट, इनिशियल एक्विजिशन. अगर आप किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हो तो एक फेयरली एक्वायर करना चाहिए, राइट. देन वॉलंटरी ट्रांसफर, आप वॉलंटरीली किसी को ट्रांसफर करते हो. और रेक्टिफिकेशन, अगर आपने अनफेयरली एक्वायर की है या अनफेयरली ट्रांसफर की है तो स्टेट को इंटरव्यू करना चाहिए थर्ड स्टेज में, रेक्टिफिकेशन, राइट. सो उनका एक बुक था रॉबर्ट नाजिक का एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, 1974 में उन्होंने लिखा था. उनमें वो प्रोसीजरल थ्योरी ऑफ जस्टिस हमें पता है, एक लिबर्टेरियन थिंकर है. सो हिस्टोरिकल जस्टिस एंड स्टेट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, दो स्टेट्स की बात करते हैं. हिस्टोरिकल मतलब क्या है कि हिस्टोरिकली मतलब आपका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, आपने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया है, राइट. सो historical principles holds that an individual past action determine the deserts or rights he would be entitled to, and जो end state principle है वो end को, outcome को देखता है, right. So end state principle suggests that there would be a set of goals to which distribution patterns should be confirmed. So historical principles यही मैंने बाद में अच्छे से लिखा है. You can just I have cited this from various books, right. So you can just look that कि क्या है actually historical principle और end state principle. सो बाद में सीबी मैकपर्सन जो इन सबको क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि मैकपर्सन पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं, तो वो बोलते हैं कि दीज आर ऑल अबाउट पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, कि जो लिबर्टेरियन थिंकर्स जो बात करते हैं वो पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, एक एक्सट्रीम लेवल की इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं, वो इसलिए वो मैकपर्सन क्रिटिसाइज करते हैं. हमें पता है हर्बर्ट स्पेंसर भी एक लिबर्टेरियन थिंकर है, नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं. और जो हर्बर्ट स्पेंसर ही है कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है उसको सोशल साइंस में लेके आते हैं, राइट. सो उनका एक बुक था द प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स 1892 में. ईच इंडिविजुअल आउट टू रिसीव द बेनिफिट्स एंड द इविल्स ऑफ हिज ओन नेचर एंड कॉन्सिक्वेंट कंडक्ट, ये फॉर्मूला वो लेके आते हैं. देन सीबी मैकपर्सन अगेन क्रिटिसाइज हिम. उनका एक बुक था डेमोक्रेटिक थ्योरी एसेज इन रिट्राइवल आर्ग्यूज दैट रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इज एक्चुअली अ रादर डिलिगेंट डिफेंस ऑफ व्हाट इज एसेंशियली अ लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट वेलफेयर स्टेट. लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट वेलफेयर स्टेट का वो डिफेंस कर रहा है रॉल्स, ऐसे सीबी मैकपर्सन बोलते हैं जब उनको क्रिटिसाइज करते हैं. माइकल ऑल्जर हमें पता है, उनका बुक था स्फीयर ऑफ जस्टिस, हमने पहले ही देखा है, राइट. वो भी स्फीयर ऑफ जस्टिस उसी बुक में वो कमेंटेरिंग केस अगेंस्ट रॉल क्रिटिसाइज करते हैं रॉल्स को. देन सुसान मोलर ओकिन एक फेमिनिस्ट थिंकर है, जस्टिस जेंडर एंड द फैमिली है उनका बुक था, और फेमिनिस्ट एंगल से रॉल्स की थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं. दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ आवर टुडेज सेशन, राइट. इन पार्ट ए पावर, हम पावर देखेंगे, फिर अथॉरिटी देखेंगे और लेजिटिमेसी क्या होती है वो भी देखेंगे.
सॉरी, सो हेरोल्ड लॉसवेल एंड कैपलान, उनका एक बुक था पावर एंड सोसाइटी 1950 में, है डिफाइंड पॉलिटिकल साइंस एज द स्टडी ऑफ द शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर. पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर. Max Weber definition of politics also implies a focus on power in the context of national as well as international politics. Politics is the struggle for power or the influencing of those in power, and embrace the struggle between states as well as between organized groups within the state, right? So Bernard Russell, Power, a New Social Analysis 1938 में उन्होंने लिखा था, has defined power as the production of intended effects. रॉबर्ट डाल एक ग्रुप थियरिस्ट है, प्लुरलिस्ट थिंकर है, उनका एक पावर का डिफिनेशन सबसे फेमस है, ए हैज पावर ओवर बी टू द एक्सटेंट दैट ए कैन गेट बी टू डू समथिंग व्हिच बी वुड नॉट अदरवाइज डू. पावर एज अ डोमिनेशन ओवर अदर, ऐसे वो देखते हैं पावर की तरह. रॉबर्ट डाल जो है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1991 में उन्होंने लिखा था, डिफाइंस पावर एज अ काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस. मतलब ये जो थियरी है, पावर एज अ इन्फ्लुएंस, it is exercised when compliance is attained by creating the prospects of severe sanctions for non compliance. अगर आप comply नहीं करोगे तो severe sanctions होंगे. तो डर को आगे करके comply किया जाता है, ठीक है. In their seminal essays, the two faces of power, ये बैकरैक एंड ब्रैड्स इन्होंने two faces of power identify की थी. एक तो डिसीजन मेकिंग हमें पता है, लेकिन सेकंड फेस इज नॉन डिसीजन मेकिंग आल्सो, कि किसी को मतलब ऑप्शन ही नहीं देना है, नॉन डिसीजन मेकिंग एज अ सेकंड फेस ऑफ पावर. ये दोनों थिंकर्स याद रखिए. वन डायमेंशनल मैन, ये है हर्बर्ट मर्क्यूज, उनका बुक है. सो वन डायमेंशनल मैन जो उन्होंने 1964 में लिखा था, हाईलाइटेड द टोटलिटेरियन कैरेक्टर ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी. जो एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है, बेस्ट मतलब जो उसमें टेरर नहीं होता है, लेकिन ओपन ब्रुटैलिटी जो होती है ना, कि मतलब नाजी जर्मनी जो था वो टेरर ओपन ब्रुटैलिटी होता है, वो नहीं होता है, जैसे कि स्टालिनिस्ट रशिया में भी था. यहाँ लोगों को कंट्रोल किया जाता है मास मीडिया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तहत, राइट. एंड देयर वेयर मर्क्यूज कॉल्ड इट एज अ कंफर्टेबल, स्मूथ, रीजनेबल, डेमोक्रेटिक अनफ्रीडम, ठीक है. सो पोस्ट मॉडर्न थिंकर है फोको, वी नो दैट. सो ही discussed about discourse of power. Discourse is a system of social relations and practices that assign meaning and therefore identifies to those who live and work within. हम फोको को बाद में आराम से सबसे लास्ट में पावर का सेक्शन फोको के ऊपर ही हम आराम से देखेंगे, लेकिन डिस्कस ऑफ पावर याद रखिए कंसेप्ट. देन टॉलकॉट पार्सन्स, पॉलिटिकल पावर एज अ मनी, ये उनका कंसेप्ट हमने देखा है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी. जस्ट यू कैन जस्ट लुक दैट, पावर एज अ मनी, टॉलकॉट पार्सन. देन मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट 1994 में किसने लिखा था, नोम चॉम्स्की. डेवलप्ड प्रोपेगेंडा मॉडल ऑफ मास मीडिया, जो होती है ना कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो मास मीडिया होती है प्रोपेगेंडा की तरह काम करती है, एंड एक्सप्लेन्स हाउ न्यूज एंड पॉलिटिकल कवरेज आर डिस्टॉर्टेड बाय द वेरी स्ट्रक्चर ऑफ द मीडिया, कि कैसे डिस्टॉर्ट करके एक कंसेंट मैन्युफैक्चर किया जाता है. उनका बुक था 1994 में चॉम्स्की का. देन ग्राम्सी. सो मार्क्स और एंगल्स हमें पता है कि उन्होंने जर्मन आइडियोलॉजी लिखा दोनों ने मिलकर, एंड द आइडियाज ऑफ द रूलिंग क्लास आर इन एवरी इपोक एंड रूलिंग क्लास आइडियाज, राइट. मतलब रूलिंग क्लास कैसे डोमिनेट करता है, क्लास पर्सपेक्टिव ऑन पावर, क्लास एज द सोर्स ऑफ पावर, ये व्यूज हमें यहाँ मिलते हैं मार्क्स और एंगल्स में. और बाद में ग्राम्सी जो होता है वो पावर एंड हेजेमनी की बात करता है. सो हेजेमनी क्या है, कि एक आइडियोलॉजिकल डोमिनेशन है, कि बाय कंसेंट, मतलब हम अनकॉन्शियसली कंसेंट दे देते हैं, कि हाउ दैट, लाइक लेट्स सी. Hegemony in this sense denotes a form of rule where power is apparently exercised with the consent of the ruled. According to Gramsci, the spiritual and cultural supremacy of the ruling class in the capitalist state was accomplished through the manipulation of civil society. कि स्टेट हमेशा जरूरी नहीं है कि अपना रिप्रेसिव या जो मिलिटरिस्टिक पोलिस स्टेट यूज करे, वो सिविल सोसाइटी को यूज करता है और कंसेंट मैन्युफैक्चर करता है. तो जो कंसेंट होती है ना, वो मतलब हम जिसको इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऐसे नहीं कह सकते, कि एक मैनिपुलेटेड कंसेंट होती है, राइट. सो पावर इज अपेरेंटली एक्सरसाइज्ड विद द कंसेंट ऑफ इट्स सब्जेक्ट, इट्स कॉल्ड द हेजेमनी. एक स्पिरिचुअल कल्चरल लीडरशिप जिसको हम बोल सकते हैं. सो बाद में लेजिटिमेशन क्राइसिस 1988 में जर्गन हेबरमास में लिखा, और पता है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एक कैसे एक क्राइसिस आएगा लेजिटिमेसी का, कि जो टेंशन आएगा, कि कोर आर्गुमेंट इज दैट टेंशन बिटवीन अ प्राइवेट एंटरप्राइज और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऑन वन हैंड एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम. मतलब कैपिटलिज्म क्या चाहेगा कि वर्कर्स के वेजेस ना बढ़ाए,
लेकिन एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में वोट चाहिए किसी भी रिजिम को लेजिटिमेसी के लिए, तो वर्कर्स प्रेशर बनाएंगे कि हमारे वेजेस बढ़ाओ, तो एक टेंशन आएगा और इसी टेंशन में वो कोलैप्स हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट लेजिटिमेशन क्राइसिस। जगन हैबरमास याद रखिए। द लेजिटिमेशन ऑफ पावर 2013 में डेविड वेंथम attempted to develop a social scientific concept of legitimacy, but one that departs significantly from Weber's. In Bentham's view, the defined legitimacy as nothing more than a belief in legitimacy is to ignore how it's brought about, right? So let's go further. Rousseau put social contract: the strongest is never strong enough to be always the master unless he transforms strength into right and obedience into duty. ये स्टेटमेंट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में मिलता है, हमें 1762 में लिखा गया था, रूसो का, पूछा जा सकता है। देन एंड ऑफ हिस्ट्री थेरिस्ट सच एज फ्रांसिस फुकुयामा। एंड ऑफ हिस्ट्री किसका है? फ्रांसिस फुकुयामा का है। 1992 में उन्होंने प्रोपोगेट किया था। हैव पोर्ट्रेड लिबरल डेमोक्रेसी एज द ओनली स्टेबल एंड एंड्योरिंग सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अथॉरिटी देखते हैं। अथॉरिटी क्या है कि जब आप किसी पावर को लोग लेजिटिमेसी दे देते कि मेरे ऊपर अगर स्टेट पावर एक्सरसाइज कर रहा है, बट आई हैव गिवन कंसेंट टू द स्टेट बिकॉज वी वोटेड देम, राइट, सो दे आर आवर रिप्रेजेंटेटिव्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो जब पावर को लेजिटिमेसी मिलती है उसको हम अथॉरिटी कहते हैं। सो हमें पता है कि जो वेबर का कंसेप्शन था ना कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी, कैरिस्मेटिक और लीगल रैशनल, वी ऑल नो दैट कि एक ट्रेडिशनल ट्रेडिशंस के ऊपर एक हेरिडेटरी होती है। चैरिस्मेटिक मतलब एक किसी, अब राइट नाउ मोदी और प्रीवियसली नेहरू, एक वन लीडर, और इंदिरा गांधी वी कैन सी इन इंडिया। सो चैरिस्मेटिक। और लीगल रैशनल मतलब एक जो ब्यूरोक्रेसी में होनी चाहिए, आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी की जब वेबर बात करता है तो एक बेस्ड ऑन द ऑफिस, ऑब्टेन्ड थ्रू प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर, रूल ऑफ ब्यूरोक्रेसी में जो लीगल रैशनल अथॉरिटी की बात करता है। देन पावर में हमें मिलती है इलाइट थ्योरी, जिसमें पेरेटो, मोस्का, मिशेल, रॉबर्ट मिशेल ये है। सो पेरेटो जो था उसका एक बुक था द माइंड एंड सोसाइटी, उसमें दो क्लासेस की बात करता है, गवर्निंग इलाइट एंड नॉन गवर्निंग इलाइट, और उनके बीच में एक इलाइट्स में ही एक सर्कुलेशन रहेगा कि गवर्निंग इलाइट जो होंगे वो कभी नॉन गवर्निंग बन जाएंगे, नॉन गवर्निंग इलाइट कभी गवर्निंग इलाइट बन जाएंगे। मतलब सपोज क्या कि अगर अभी यू कैन जस्ट बीजेपी इज इन पावर इन इंडिया, राइट, so they are now governing elite, and suppose later Congress replaced BJP and came to power, then they will become the, as of now Congress is non-governing elite and they will become the governing elite, right? So not Congress and BJP per se, but they talks about the elite, matlab there are leaders, right? So within BJP there is a Narendra Modi, or there is a Amit Shah, or some other leaders, and Congress we have the Rahul Gandhi or Shashi Tharoor or Ashok Gehlot, etc. other leaders. So these are the we can say Ashok Gehlot as a governing elite in Rajasthan, but other is like Rahul Gandhi or Shashi Tharoor as a non-governing elite, and so they will, circulation of elite goes on, right? So that's Pareto, circulation of elite जो उनका theory है। Then Gaetano Mosca, उनका रूलिंग क्लास था, एक बुक था उसमें रूलिंग क्लास में वो क्या कहते हैं, देयर आर सम रूलर्स एंड अदर्स आर रूल्ड, ऐसे दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं सोसाइटी को। द रूलिंग क्लास उनका बुक था गैटनो मोस्का का, ये मोस्का है, ये पहले थे परेटो जो सर्कुलेशन ऑफ इलाइट की बात करते हैं। बाद में है मिशेल्स, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज नाम का एक बुक लिखा था 1911 में, उनमें वो आयरन लॉ ऑलिगार्की कहते हैं कि कौन सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हु सेज ऑर्गेनाइजेशन दे सेज ऑलिगार्की, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो बाद में रूल ऑफ फ्यू ही बनता है, स्टार्टिंग उसका कैसे भी हुआ हो, एंड में वो किसी एक इलाइट लोग ही उसको रूल करते हैं। सो दैट्स अबाउट आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की। क्या कहते हैं, demonstrate that every organization whatever its original aim is eventually reduced to the oligarchy, that is the rule of the chosen few। और बाद में हमें मिलती है सी राइट मिल, जिनका द पावर इलाइट है, a combination of several groups who exercised all powers by virtue of their high status in all important spheres of social life. It signified the inner circle of power holders in modern American society। मतलब जो बिजनेसमैन होंगे वो सब जगह पे पावर, हमेशा पावर रहेगा उनके पास। सो याद रखिए कि सी राइट मिल उनका है पावर इलाइट, रॉबर्ट मिशेल का है पॉलिटिकल पार्टीज और आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की, गैटिनो मोस्का का द रूलिंग क्लास, रूलर्स और रूल्ड, और विल्फ्रेड पैरेटो का द माइंड एंड सोसाइटी, सर्कुलेशन ऑफ इलाइट और नॉन गवर्निंग इलाइट एंड गवर्निंग इलाइट। ये यही पूछे जाएंगे अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो। देन ग्रुप पर्सपेक्टिव ऑफ पावर, राइट, तो हमें उसमें क्या मिलता है कि रॉबर्ट डाल है, चार्ल्स लिंडबॉम है, उनका बुक था कि इन दोनों का बुक है कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड वेलफेयर। रॉबर्ट डाल का प्रीपेज टू डेमोक्रेटिक थ्योरी एंड हु गवर्न्स, ये हु गवर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट बुक है बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, राइट, ये है रॉबर्ट डाल। सो डाल्स मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी इज डिस्क्राइब्ड एज अ पॉलियार्की।
पॉलर की बात कौन करता है? रॉबर्ट डाल करता है, याद रखिए पॉलर की, ये भी पूछा जा सकता है, आई जस्ट फॉरगॉट टू हाईलाइट इट. He postulated that the society is controlled by a set of competing interest groups with the government as a little more than a honest broker, right? So I just try to, you know, रॉबर्ट लॉर का कंसेप्ट है पॉलियार्की. And Who Govern is one important book. Robert Dahl, right? So let's go further. कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ पावर एक है. कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ पावर में एक डिस्टिंक्शन होता है ना कि पावर ओवर और पावर टू. जो पहले सब हमने डोमिनेंट व्यू कौन सा है कि पावर ओवर मतलब हमारे ऊपर किसी की पावर है, राइट? एक डोमिनेशन है. पावर टू मतलब लोगों को पावर देना, एक ग्रुप में पावर डिस्ट्रीब्यूट होना, कलेक्टिवली पावर एक्सरसाइज करना. सो कंस्ट्रक्टिव व्यू जो है वो पावर टू की बात करता है. उसमें एना अरेंट, गांधी, सीबी मैकफर्सन ऐसे लोग आते हैं. सो एना अरेंट का जो है ना कि पावर पॉलिटिक्स इज एक्टिंग इन अ कॉन्सर्ट, एक फेमस स्टेटमेंट है, पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में. इनर व्यू, when rulers use force to fulfill their design against the wishes of the people, it may be called as a violence. On the other hand, power essentially belongs to the people, it resides in the people. Hanna views political institutions as a manifestation and materialization of power. So on violence उन्होंने लिखा था 1969 में. violence क्या है कि किसी के अगेंस्ट एक्सरसाइज करना पावर. According to Arendt, power is the quality of people constituting the public realm. Violence is the property of the state which is used against the people. Violence relies on the instruments of its application, hence it can be held as a possession. Arendt wants where genuine power is absent, violence may emerge to fill that gap. Again, she wants violence can destroy power, it is utterly incapable of creating it. So again CB McPherson, constructive view of power. So हमने पहले ही देखा है कि वो डिफाइन करते कि एक्सट्रैक्टिव पावर जो होता है वो एक होता है डोमिनेशन वाला, और एक होता है डेवलपमेंटल पावर, पावर टू पीपल. सो डेवलपमेंटल पावर क्या होता है? ऑन द अदर हैंड इट डिनोट्स पर्सन्स एबिलिटी टू यूज हिज ओन कैपेसिटीज फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हिज सेल्फ अपॉइंटेड गोल्स. और एक्सट्रैक्टिव पावर में क्या करेंगे कि पर्सन एबिलिटी टू यूज अदर्स कैपेबिलिटीज, दूसरे को इन्फ्लुएंस करना. Then Mahatma Gandhi, Gandhi's insistence on power to the people, एक सेल्फ स्वराज, एक स्वराज की बात करते हैं ना, और एंड में एक सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटी की बात करते हैं. So last section is Foucault on power. We can say Foucault also, Michel Foucault. So according to him, power is not a repressive. That is, in the modern era, power does not operate by preventing us from doing what we want. Rather, Foucault says power as a productive. Power produces identity and subjectivity. So हमारे जो identities होते हैं वो power produce करती है. Further, power does not emanate from a single source, whether the state or the ruling classes. Power is conceptualized by Foucault as a capillary. It does not reside in any person A or person B. It is a capillary. It flowing throughout the system like blood in the capillaries in our body. मतलब it flows everywhere. Power is everywhere. Right? So through the mechanisms of what Foucault calls governmentability, right? तो subjectivity का है वो बात कर रहा है उसमें. So we are produced as the subjects of governance. By governmentality, it refers to the increasing homogenization or organization of society in modern times through a huge bureaucratic machinery that involves endless way of classifying people. एक लोगों को क्लासिफाई करके गवर्नमेंटल, एक जस्ट एग्जांपल देता हूँ कि फोको की पावर का वो कैसे काम करती है. सो एक मीटिंग चल रही है, हमें बुलाया है मीटिंग के लिए, और अंदर सब बच्चे बैठे हैं, ठीक है. और सपोज दे हैव रिमूव्ड देयर ऑल शूज आउटसाइड, बट देयर इज नो एनी सच सॉर्ट ऑफ टेम्पलेट और लाइक ऐसे बाहर कहीं भी लिखा गया नहीं है कि आपके जो भी चप्पल जूते हैं बाहर उतारिए और अंदर आए, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं गया है. लेकिन व्हेन यू गोस देयर, you see that other all people remove their shoes or etc chappals other side, and you also do the same. So there is also power, right? So it's like subjectivity, or you can say governmentality, right? So the concept of power as a knowledge मतलब क्या है? देखो ये कैसे है. He does not simply mean that the knowledge is a power. Not that. That is a vague understanding. Rather, he means that knowledge is already a function of power relations.
knowledge is a produced and gained in order to be put to certain use, in order to achieve power. knowledge का use करना power का achieve करने के लिए, and far from preventing knowledge, power produces it. मतलब एक दोनों भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंटरीली प्रोड्यूस करते हैं. सो उसका एक बॉय पावर का भी कंसेप्ट है, याद रखिए. एक कंसेप्ट यू कैन जस्ट सर्च फॉर इट और यू कैन कमेंट इट इन कमेंट बॉक्स. 2013 के दिसंबर में बॉय पावर कंसेप्ट किसका है? माइकल फोको का है, पूछा गया था. देन दीज आर सम मिक्स्ड क्वेश्चंस. 2013 के दिसंबर में स्टीवन ल्यूक्स का रेडिकल व्यू ऑफ पावर, ये बुक पूछा गया था. 1975 में उन्होंने लिखा था पावर और रेडिकल व्यू, राइट. स्टीव ल्यूक्स, यह है स्टीव ल्यूक्स और ये उनका बुक है पावर और रेडिकल व्यू. 3 फेसेस ऑफ पावर की बात करते हैं. थर्ड जो फेस है वो रेडिकल है. Central theme in the radical view of power is the distinction between truth and falsehood, reflected in the difference between subjective or felt interest and the objective or real interest. Decision making power जो डाल का है, हमें पता है decision making power. Non decision making power जो बैकक्रैक और बैरेट्स का, ये these are the 2 phases. And third is the radical view जो बोलते हैं, वो क्या है देखते हैं चलो. So these are the first phase. This is the first phase. This is the second phase. Lewis in radical view pointed out third dimension of power. It implies that power holders can so manipulate the wants of the others that their real interests are suppressed. मतलब मीडिया के थ्रू, एडवर्टाइजिंग के थ्रू. अब इट्स लाइक हमारे रियल वांट्स को सप्रेस करना, मतलब हमें वो चीज नहीं चाहिए होती, लेकिन एडवर्टाइज देख के हमारे ऊपर इतना इन्फ्लुएंस होता है कि हम वो चीज खरीदते हैं. व्हेन वी गो फॉर एनी शॉपिंग, राइट, व्हेन वी गो इन द मॉल, सो वी जस्ट गो देयर टू बाय एनी वन पर्टिकुलर थिंग, बट वी came up out like buying so many other stuffs also. That's like suppressing our real wants and just influencing us. So Lewis argues that power should be understood as a structural and working in various ways to shape the very perception of people. लोगों का perception shape करने के लिए power काम करती है. Power can work in a way that what people consider to be in their interest is in fact what is desired for those in power. People's real interests are hidden from them, right? So Stewart Clegg का Circuits of Power उनका बुक एक है. निस्जे का विल टू पावर है. ये भी 2 बुक्स 2013 के दिसंबर में पूछा गया थे मैच द फॉलोइंग के लिए सब. जोसेफ नाइक का एक स्टेटमेंट है फेमस. पावर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज लाइक द वेदर, एवरीवन टॉक्स अबाउट इट बट फ्यू अंडरस्टैंड इट. 2013 के दिसंबर साइकिल में ही ये चारों थिंग्स मैच द फॉलोइंग में ऐसे पूछे गए थे, याद रखिए. देन इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी पार्ट बी. So in part B, we are going to see rights and human rights, democracy, citizenship, state, sovereignty, civil society, and gender. So this is going to be our work of the next session. So guys, please watch that video also, and to the supplementary to this, you can watch Western Political Thought or Comparative Politics, right? So to make sense of theoretical understanding. Please subscribe to my channel, like it. If you have any queries, then comment it in comment box, and please share the link to your all friends. Thank you.